So you need to know the normal if you want to understand the abnormal. And physiology is all about the normal functions of your body, how your body normally functions. Hey there, I'm Sakshi. I'm a second year MBBS student at RGKMCH and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk about how you can approach physiology in your first year. So if your physiology is good, you can build your pathology over it and also the pharmacology. And you must be knowing that if your pharmacology and pathology are good, you can easily build medicine over that. So basically हम क्या कर रहे हैं, we are making a building and the strength of each and every floor of that building determines whether the building will stay or fall. So we have to make sure that we build every floor with certain amount of strength so that the building doesn't fall. And interestingly, we have only limited amount of time to build this building. So we have to make sure that we don't waste much of our time for building a particular floor and leaving the rest. We need to efficiently utilize the time available, and this is the main motive of this how to approach playlist. So in this playlist I basically talk about how you can approach a particular subject of first year, the theory as well as the practical part, so that it will provide you a path to follow and you will not waste your time roaming around randomly. So I cannot promise you to give the best advice in the world, but I can help you with problems that you might face on your path based upon my experiences. The stories of mistakes that I committed and how I overcame that might help you to lead your journey further. If you want to check out the videos of this playlist, which you should if you are in first year, then you can click on the link up here. And if you have any kind of suggestions, if you want me to express things in a certain manner, or if you want me to add few things, then you can comment that in the comment section. That would help me to improve and also the content that I post on this channel. So without further ado, let's get started. So as usual, we will start by knowing the hurdle. So सबसे पहले हम लोग पेपर के बारे में बात करेंगे, the paper distribution. So you must be knowing that in your first year MBBS, all the 3 subjects that you have will have 2 papers in their final MB. So in physiology also you have 2 papers, paper 1 and paper 2, and we will be discussing about the topics that will come under paper 1 and paper 2. So in paper 1 you have general physiology, nerve muscle, blood, CVS physiology, respiratory physiology, GIT physio and 8com. In the paper 2 the topics are excretory physio, endocrine physio, reproductive physio, neuro physio and special senses. तो आपको एक आइडिया मिल चुका कि कौन से पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इसके बेसिस के ऊपर आप अपने स्ट्रैटेजीज को फॉर्म कर सकते हो. So we can divide the complete subject into 7 units as you can see on your screen, and we'll talk about how you can approach each section. So starting with CVS and CNS system. तो CVS और CNS system आपके बॉडी के बहुत ही वाइटल सिस्टम्स हैं, और यही रीज़न है कि इसका जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. इसके कारण आपके बाकी ईयर्स में भी ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको आपके लेवल पे क्या करना है कि आपको जो फिजियोलॉजी दे रखी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और CNS सिस्टम की, उसमें बेसिक्स जो है उसको बहुत अच्छे से कमांड उसके ऊपर करना है. उसकी जो बेसिक्स है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कार्डियक आउटपुट हो गया, हार्ट रेट हो गया, देन वेनस रिटर्न हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, देन स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया. इन सारी वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअली, उनको आपको समझना है. देन कैसे कैसे ये चीज़ें इफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इनको इफेक्ट करते हैं, कैसे कैसे ये फैक्टर्स आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरा इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हार्ट रेट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हार्ट रेट को आपके ऑल्टर कर सकते हैं. देन कौन कौन से कंडीशन में आपके हार्ट रेट ऑल्टर हो सकती है. देन हार्ट रेट ऑल्टर होने से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसी सारी चीज़ें. देन आपका कार्डियक आउटपुट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो ऑल्टर हो सकता है, और अगर आपका कार्डियक आउटपुट ऑल्टर होता है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके बॉडी में. तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए. तो इसके लिए आई वुड रियली रिकमेंड कि आप डॉक्टर नजीब सर की वीडियोस देखो. तो सर की वीडियोस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट उनका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अराउंड 800 और समथिंग है, और बहुत क्वालिटी वीडियोस है. सर स्टार्टिंग से लेकर के ज़ीरो से लेकर के सारी चीज़ें समझाते हैं और पढ़ाते हैं. तो अगर आपकी बेसिक क्लियर भी नहीं है तो भी आप बहुत आसानी से सर के वीडियोस फॉलो भी कर पाओगे और उसको समझ भी पाओगे. तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे. बल्कि वीडियोस के अलावा आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को यूज़ कर सकते हो इन 2 टॉपिक्स के लिए, और इस बैकबोन को यूज़ करके आप अपने स्टडी शेड्यूल को फॉर्म कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है. तो CVS और CNS इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम अपना वेस्ट भी नहीं करना है. आपको बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप किसी सिंपल टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हो, जैसे AK जैन.
अगर आप गैनम और गाइटिन यूज़ नहीं कर रहे हो। तो रेस्पिरेटरी और रेनल फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, तो आप आसानी से समझ पाओगे इनकी फिजियोलॉजी। तो इसके लिए भी आई वुड रियली रिकमेंड कि आप डॉक्टर नजीब सर के वीडियोस देखो। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सर की वीडियो के साथ बस एक प्रॉब्लम है कि सर की वीडियोस बहुत लेंदी है और आपके जो टेक्स्ट बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे थोड़ा ज़्यादा सर कभी कभी बता देते हैं, बट सारी चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो सर के वीडियोस तो आप देख सकते हो। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आप सारे वीडियो सर के नहीं देख पाओ, बट अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आई वुड रियली आस्क यू कि आप सर के सारे वीडियोस देखो। इससे आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। बेसिक जो रेनल फिजियोलॉजी की वीडियोज़ है उसमें सर ने पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी को भी इंक्लूड करा है, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर क्या पढ़ने वाले हो। बट इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन आपका फिजियोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके पढ़ो, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो जाएगी। बस इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप नेक्स्ट ईयर क्या पढ़ने वाले हो और उसकी जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में। जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि मैंने सेल को हाईलाइट करके रखा है, और इसका रीज़न ये है कि सेल बहुत सिंपल है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना है। और इससे काफ़ी बार वाइवा में भी और इवन आपके थ्योरी पेपर में भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, जो आपने शायद अगर बुक से पढ़ा होता तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाते। तो आप सेल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वाइवा में हो सकता है टीचर्स आपको पूछ ले, सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, और अगर आप सेल से रिलेटेड ही सिंपल क्वेश्चंस आप नहीं बता पाओगे तो बहुत मतलब उनका फिर मूड ख़राब हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि सेल जो है वो बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सेल को पढ़ा और उसके बाद उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करना है, उन चीज़ों को आपने एक जगह लिख करके रख लिया और उसके बाद फिर आप उसको बार बार रिविजिट करके पढ़ सकते हो। और बार बार आपको बुक पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी मेक श्योर कर रहे हो कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेल के अंदर है उसको आप मिस नहीं कर रहे हो। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम सिंपल है, बट एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हो इस टॉपिक के लिए, इसमें रीजंस और एक्सप्लेनेशन दिए रखे हो। बिकॉज पर्सनली मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था ये, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ आपको हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना होता है, उन हार्मोन्स का डिफरेंट सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन है उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। अब ये हार्मोन्स डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, अब वो सिस्टम उनका कुछ डिफरेंट एक्शन है कारण वो बाकी सिस्टम्स को एक डिफरेंट वे में अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक्ड है और यही रीज़न है कि काफ़ी बार ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो फैक्ट्स की बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आपको पढ़नी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो आपको इस टॉपिक से पढ़नी है, बट हाँ उन्हीं कम चीज़ों को समझने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को यूज़ करना ज़रूरी है, या फिर कोई भी आप ऐसी बुक को यूज़ करो जहाँ पे रीजंस और एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखी हो। कोई भी ऐसी बुक को मत उठाना जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स दे रखे हो, क्योंकि फैक्ट्स को समझने के लिए बहुत आपको डिफिकल्टी होगी, आपको रीजंस और एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे हैं इस टॉपिक में स्पेसिफिकली। हो सकता है कि एक हार्मोन है, हार्मोन का एक्शन उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उसका लो कंसंट्रेशन है तो उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन है, देन उसका अगर हाई कंसंट्रेशन है तो उसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन है। तो ये जो ऑल्टर्ड एक्शन हार्मोन शो कर रहा है, इसके कारण जो सिस्टम अफेक्टेड है उसके भी एक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे और उसके भी फंक्शंस ऑल्टर हो जाएंगे। तो अगर आपको रीज़न पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक हार्मोन एक सर्टेन वे में परफॉर्म कर रहा है, या एक्शन उसका डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्यों एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्शन वो शो कर रहा है, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डेप्थ में समझना है कि क्यों एग्जैक्टली सारी चीज़ें हो रही है, बट हाँ अगर आपको एक बेसिक आइडिया मिला हुआ है तो चीज़ों को याद रखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीआईटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जीआईटी और रिप्रोडक्टिव इजी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। आसानी से जो भी इन्फॉर्मेशन है आप समझ पाओगे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। ये दोनों टॉपिक्स जो है वो बहुत ईजी है, ईजी गोइंग है और आप आसानी से इसको कवर कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशल सेंसेस के बारे में। अब स्पेशल सेंसेस का भी थ्योरी में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसका मेन जो इम्पॉर्टेंस है वो आपका प्रैक्टिकल में है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने कोई एक रेगुलर टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है स्पेशल सेंसेस के लिए तो भी काफ़ी आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। और स्पेशल सेंसेस में भी मेनली जो आई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ सकते हो।
तो स्पेशल सेंसेस इंटरेस्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है। प्रैक्टिकल में जैसे क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हो गए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए स्पेशल सेंसेस इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के केस में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज इट। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे आपको पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, उसके डिफरेंट सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना है, कौन कौन सी रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा। So if this was helpful for you, make sure you hit that like button and do share this video with your friends so that they can also get benefited, and obviously you can subscribe to the channel if you want to receive more such content from my side. Thank you so much for watching and hope to see you in the next one. Bye bye.